So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and good morning to all of you. So today I will discuss the new topic, or we can say that the last topic in the pipe flow, that is how to compute the discharge in the pipe networks. So one of the very famous method, that is called Hardy-Cross method. So with the help of this Hardy-Cross method, we will solve the how to compute the actual discharge flowed in the different pipe network, and then I will discuss the branching of pipe. How do we compute the discharge, or we can say the total head in the branching of pipe. So let us start the Hardy-Cross method. So Hardy-Cross is a American structural engineer. He was developed the Hardy-Cross method, or he has solved the how to compute the discharge in the pipe network by these methods. And he has also known for the developing of the moment distribution method in structural engineer. So let us start what is Hardy-Cross method. So in Hardy-Cross method, there are some rules we have to follow, like the continuity equation must be satisfied in the at the pipe at the inlet and at the outlet, and then the Darcy-Weisbach friction factor is applicable, or we can say that head loss is directly proportional to the discharge, or in general we can say that HF is directly proportional to the Q to the power n. In normally we will take the value of n is equal to 2, or we can say that HF is head loss, frictional head loss in the pipe is directly proportional to the Q square. Then firstly we will assume the certain discharge that will flow with the different pipe networks, and after that we will apply the correction, and we will compute the different value of actual discharge that will flow in the pipe network. So how do we check that the actual discharge is coming in the pipe network? So in each and every trial, this is a trial and error method. So in each and every trial, the continuity equation must be satisfied. Means total inflow discharge should be equal to the total outflow discharge, and this procedure is repeated until the value of delta Q is negligible. तो ये मैंने प्रोसीजर बताया कि क्या करते हैं. ये मैंने बताया कि ये पाइप नेटवर्क को जनरली सॉल्व किया जाता है बाय Hardy-Cross मेथड से. और Hardy-Cross मेथड क्या है? सो Hardy-Cross मेथड में मैंने बोला कि देयर इज सर्टेन रूल्स. जो सर्टेन रूल्स क्या है कि आपको जो है इनिशियली एक डिस्चार्ज जो है वो आपको एज्यूम कर लेना है कि ये डिस्चार्ज जो है डिफरेंट पाइप नेटवर्क से फ्लो हो रहा है. उसके बाद क्या है, वो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग को जो है अब दो वैल्यू निकालना है. एक तो होता है कि आपका जो है मैंने बताया कि जो हेड लॉस होगा सिंगल पाइप में, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू Q स्क्वायर या Q टू द पावर n. नॉर्मली जो n की वैल्यू जो होती है वो 2 आती है. कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि HF इज इक्वल टू FL Q स्क्वायर बाय 12.1 d5. तो ये FL डिवाइडेड बाय 12.1 इनटू d5 है, इसको हमने एक कांस्टेंट ले लिया जिसको हम नाम देंगे स्मॉल r. तो वी कैन से HF इज इक्वल टू r इनटू Q स्क्वायर. सो यहाँ से हमने क्या देखा कि r एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो हर पाइप नेटवर्क में दी रहेगी, आपको हर पाइप नेटवर्क में दी रहेगी. और ये ड्यू टू हेड लॉस जो हो रहा है, तो हेड लॉस जो हो रहा है उसके जो इसमें एक साइन कन्वेंशन भी लिया जाता है कि जो क्लॉकवाइज अगर हमारा हेड लॉस हो रहा है, मतलब कि जो फ्लो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे. अगर ये एंटी क्लॉक में हो रहा है, हेड लॉस कॉजिंग ड्यू टू द डिस्चार्ज जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे हम लोग निगेटिव लेंगे. लेट अस डिस्कस द क्या हमारा प्रोसीजर है फिर से, तो अच्छे से हमें समझ में आएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आता है आपके AKU एग्जाम में भी, और जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे यूपीएससी के इस कन्वेंशनल पेपर में तो आपको मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन. सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइप नेटवर्क क्या है. सो टू एनालाइज ए पाइप नेटवर्क Hardy-Cross मेथड इज यूज्ड. Hardy-Cross मेथड से हम लोग पाइप नेटवर्क को सॉल्व करते हैं. Hardy-Cross मेथड अभी हमने बताया कि क्या है ये. सो यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू Darcy-Weisbach HF इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, FL Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू d5. तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसको हमने क्या बोला है कि एक कांस्टेंट है जिसको हमने बोला है R. Darcy-Weisbach फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ ऑफ द पाइप, या अगर इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में लिखे तो 4F' इनटू डिवाइडेड बाय 12.1 d5. सो इसको हमने सम कांस्टेंट ले लिया R इनटू Q स्क्वायर. जनरली जो लिया जाता है ये R इनटू Q टू द पावर n, लेकिन जो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे Darcy-Weisbach लगा रहे हैं तो n नॉर्मली n की वैल्यू जो है वो 2 लेंगे. तो हमने ये इन जनरल जो लिखा है HF इज इक्वल टू R इनटू Q टू द पावर n, और मैंने बोला कि नॉर्मली n जो होगा वो 2 होगा.
आपको वो क्वेश्चन में बोल देगा कि आपका जो हेड लॉस है, जो फ्रिक्शन हेड लॉस जो है वो कैसे वेरी कर रहा है डिस्चार्ज के साथ, वो आपको बताएगा। इन जनरल जो है हम लोग R इंटू क्यू स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली फ्लो इनटू एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला कि जितना फ्लो किसी जंक्शन में इन हो रहा है उतना ही आउट भी होना चाहिए, तो वो आउट होना चाहिए। तो फ्लो आउट ऑफ ईच जंक्शन फॉर करेक्ट डिस्चार्ज, आपको मैंने पहले बोला कि आपको एज्यूम कर लेना है कुछ डिस्चार्ज। जैसे देखो ये दिस इज द पाइप नेटवर्क, ये हमारा जो है वो 1 2 3 4 5 पाइप्स जो कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग ऑफ पाइप जो है। तो ये पाइप नेटवर्क है। इस पाइप नेटवर्क में कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे अगर जो ये इनफ्लो जो है ये Q है और आउटफ्लो जो है लेट अस अज्यूम कि ये Q2 Q3 Q4, सो दिस Q मस्ट बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये होना चाहिए। या ऐसे भी देखा जाए कि यहाँ पे जो Q है तो ये दो पाइप से कनेक्ट हो रहा है, दिस पाइप एंड दिस पाइप, सो दिस Q जो होगा जितना इंटर हो रहा है ये दोनों इस दोनों पाइप के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉर करेक्ट डिस्चार्ज इन ईच लूप हेड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने पहले ही बोला कि जैसे मान लो कि डिस्चार्ज कुछ इस तरह इसमें फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण अगर देखा जाएगा तो ये किस तरह रोटेट कर, इसका डिस्चार्ज होगा हेड लॉस से कैसे होगा। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे हमने मान लिया है कि इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये क्या रोटेट, इसके कारण हेड लॉस को होगा कुछ इस तरह के इस डायरेक्शन में होगा। तो वो जो होगा इस डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज हम लोग लें, क्लॉकवाइज तो हेड लॉस जो होगा वो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, अगर डिस्चार्ज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें हेड लॉस जो है वो निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज देन इट शुड बी निगेटिव। उसी चीज को लिखा गया है कि आपका होना चाहिए। और फिर जो है कि कैसे मेथड है, तो मेथड कैसे, तो सबसे पहले हमने बोला है कि कोई भी अगर हम लोग ब्रांच जो पाइप नेटवर्क है उसमें आप एज्यूम कर लो कोई भी एक फ्लो, वही वो पहला स्टेप है कि एज्यूम फ्लो इन ईच पाइप सैटिस्फाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। आपने जो एज्यूम किया है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद क्या है, टेक हेड लॉस ड्यू टू क्लॉकवाइज फ्लो एज ए पॉजिटिव एंड हेड लॉस ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज फ्लो एज ए निगेटिव। क्लॉकवाइज जो अगर हो रहा है तो वो पॉजिटिव लेना है हेड लॉस, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमें निगेटिव वैल्यू लेना है। मॉडिफिकेशन डिस्चार्ज या करेक्शन डिस्चार्ज, जो हमने डिस्चार्ज एज्यूम किया है वो आपका जो होगा वो, जब मान लो कि लेट अस एज्यूम कि हमारा इनिशियल डिस्चार्ज जो हमने ले लिया है वो Q ले लिया है, और फाइनल डिस्चार्ज जो है हमारा, जैसे मान लो कि इसी पाइप में मैंने मान लिया है कि यहाँ जो ये Q की वैल्यू जो है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो 100 मीटर क्यूब जो है वो यहाँ पे जो आ रहा है वो 40 और यहाँ पे जो आ रहा है वो 60। अब ये जो 40-60 है ये ओरिजिनल 40-60 नहीं था, बाद में जब हमने इस पे करेक्शन किया तो ये वैल्यू जो था ये 40 के जगह पे यहाँ पे 32 या 35 था, या 42 या 45 उससे ज्यादा ही हो गया। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे आपको निकालना है, तो इस कुछ इस एक्सप्रेशन से, जो मॉडिफिकेशन डिस्चार्ज है डेल्टा क्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ आर क्यू टू द पावर n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r इंटू n इंटू क्यू n माइनस 1। जहां पे मैंने बोला है कि आपको n की वैल्यू जब 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को इस तरह से भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि जनरली अगर बात की जाए, अगर इफ n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस समेशन ऑफ r क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 2r इंटू क्यू। तो जब हमने दो वैल्यू ले लिया है तो इन जनरल 2 लिया जाता है, तो ये यहाँ पे क्या है। उसके बाद डेल्टा क्यू जो है आपने निकाला है यहाँ से, जिस एक्सप्रेशन से ये जो डेल्टा क्यू आया है उस एक्सप्रेशन से जो आपने निकाला है उसको आप अलजेब्रिकली ऐड करो जो आपने इनिशियल डिस्चार्ज एज्यूम किया है। लेट अस एज्यूम कि हमने 40 लिया है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव। और यहाँ पे जो वैल्यू आई है डेल्टा क्यू, इसकी वैल्यू जो आई है माइनस 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको अलजेब्रिकली जोड़ना है, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रहे। आपने जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पाइप नेटवर्क में, इसमें अगर आपने 40 मीटर क्यूब पर सेकंड लिया है और डेल्टा क्यू की वैल्यू अब जो आई है वो दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5, सो आपका डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो 40 माइनस अलजेब्रिकली आप जोड़ दो। जैसे इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे अगर लें ये वाले में, तो इसमें मान लो कि 60 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो ये तो रोटेट कर रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी निगेटिव है। तो ये जो 60 है तो मतलब ये माइनस 60, और जो डेल्टा क्यू आपने निकाला है माइनस 2.5, मतलब कि इसमें अब जो डिस्चार्ज जो हो जाएगा इस पाइप नेटवर्क में दैट इज इक्वल टू माइनस 62.5, और यहाँ पे जो हो जाएगा 40 माइनस अलजेब्रिकली जोड़ा तो माइनस 2.5 मतलब कि 37.5। तो इस तरह करके आपको ये प्रोसीजर ट्रायल एंड एरर जब तक खत्म ना हो, जब तक कि ये डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है नेग्लिजिबल ना आ जाए। जब नेग्लिजिबल आ जाएगा तो जो फाइनल डिस्चार्ज जो पाइप नेटवर्क में आया है वही हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा वो पाइप नेटवर्क में होगा। So continuous modifying discharge till delta Q is negligible। अब ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया है, ये एक्सप्रेशन कैसे आया है, तो हमने अभी यहाँ पे लिखा है क्या कि जो हमारा जो HF है, HF को हमने क्या लिखा है, अगर हमने 2 ही वैल्यू ले लिया है तो क्या है R इंटू क्यू टू द पावर 2। यहाँ पे अगर सिंगल पाइप है तो अगर फॉर सिंगल पाइप
R इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू R इंटू क्यू स्क्वायर। अगर इस तरह का बहुत सारा पाइप है तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ HF जो हो जाएगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमने करेक्शन कर दिया है तो क्या लिख सकते हैं, Q प्लस डेल्टा Q का होल स्क्वायर समेशन ऑफ। तो यहां से क्या आ जाएगा कि समेशन ऑफ HF जो है, और किसी भी लूप में अगर हमारा करेक्ट हो रहा है तो हेड लॉस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए फॉर एनी लूप आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन फॉर एनी लूप। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ R और ये जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू इंटू डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कि आपका जब करेक्शन किए हो तो डेल्टा क्यू की वैल्यू तो नेग्लिजिबल होती जाएगी ना, तो ये वैल्यू जो है वो हमारा लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका समेशन ऑफ R इंटू क्यू स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू है प्लस समेशन ऑफ 2 इंटू R इंटू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा क्यू 2 इंटू R इंटू क्यू इंटू डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हम लोग निकाला है क्या हो जाएगा, माइनस समेशन ऑफ R क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 2R इंटू क्यू। यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है, अब देख सकते हो मॉडिफाइंग डिस्चार्ज जो है यहाँ पे माइनस है, माइनस समेशन ऑफ R क्यू टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 वैल्यू ले लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, अगर अब 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, R क्यू टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 क्यू टू दी पावर 3 माइनस 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगी वैल्यू। तो उसी तरह हमको लेना है, तो क्वेश्चन में वो चीज आपको दिया रहेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रोसीजर में क्या है कि आपको सबसे पहले गेस कर लेना है एक वैल्यू। आपको गेस क्या करना है, तो गेस जैसे मान लो कि यहाँ पे Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू जैसे यहाँ पे है कि 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो हमने यहाँ पे जैसे मान लिया है कि इसमें 40 जा रहा है, इसमें 60 जा रहा है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है, मान लो कि इसी में 60 जाता है, इसमें 40 जाता, या दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 70 इसमें 30 मीटर क्यूब पर सेकंड जाता, इसमें 20 जाता, इसमें 80 जाता। तो वो आपको इस तरह एज्यूम करना है कि ये वाला भी वैल्यू और ये वाला वैल्यू सब पॉइंट पे जो एग्जिट हो रहा है वैल्यू, मान लो कि बी पे जो है आउटफ्लो दिया रहता है कि यहाँ पे 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है, डी पे जो है वो 30 मीटर क्यूब पर सेकंड है, और सी पे जो है वो 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 50, वो तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बोला कि यहाँ पे जो ये जो 20 है, तो यहाँ से अगर 40 जा रहा है तो 40 का कुछ वैल्यू जो है वो इधर जा रहा है 20, तो फिर इधर 20 जाएगा या इसमें, इस दोनों पाइप में भी जा रहा है, या इसका डायरेक्शन किस तरह है, वो सारा चीज हमको पहले से ही एज्यूम करना है। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे हमने एज्यूम कर लिया सारे पाइप में वैल्यू, और डायरेक्शन बिल्कुल एकदम रहना चाहिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, जैसे इसका डायरेक्शन, तो ये जो इसके इस डिस्चार्ज का डायरेक्शन जो होगा वो हेड लॉस किस तरह क्रिएट करेगा, तो दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसको इधर से हम लोग इस डायरेक्शन में अगर ले लें तो ये भी हमारा कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस तरह आपको पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू लेना है। और जो आपने इनिशियली जो डायरेक्शन लिया है कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये तो आपने एज्यूम किया है। अगर आपका जो एक्चुअल जब निकालोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपने ये डायरेक्शन लिया है वो इस तरह के डायरेक्शन में आ जाए, इधर जाने लगे, तो वो भी पॉसिबल है। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। सो एग्जांपल, उसके बाद मैंने बोला कि जैसे आपने ले लिया उसके बाद डेल्टा क्यू की वैल्यू आप निकाल लो जो करेक्टेड डिस्चार्ज है। तो करेक्टेड डिस्चार्ज जो होगा, मॉडिफिकेशन जो हम लोग करेंगे वो डेल्टा क्यू इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल लेंगे, और जो ये वैल्यू आएगा उसको एल्जेब्रिकली जो वैल्यू हमने एज्यूम किया है इनिशियल वैल्यू, उसमें आपको ऐड करके और फिर से आप दूसरा पाइप नेटवर्क बनाओ और उस पाइप नेटवर्क में फिर से देखो कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। ये प्रोसीजर तब तक आपको रिपीट करता है जब तक कि डेल्टा क्यू की वैल्यू नेग्लिजिबल ना आ जाए। ठीक है, तो इसको एक प्रॉब्लम से हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया था, 10 मार्क्स का। ए पाइप नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, एक पाइप नेटवर्क है जो किस फॉर्म में है, ट्रायंगल के फॉर्म में है। ABC हैज इनफ्लो ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट A एंड B, मतलब कि A और B में हमारा क्या है, इनफ्लो है। अगर इसके डायग्राम को अगर हम लोग बना ले तो इसके डायग्राम को देखो कि ये ट्रायंगल फॉर्म में पाइप नेटवर्क है कुछ इस तरह। अब हमने बोल लिया कि लेट अस अज्यूम ये A है, ये B है और ये C है। तो बोला जा रहा है क्या कि ए ट्रायंगल ABC हैज इनफ्लो ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट A, मतलब कि इनफ्लो हो रहा है तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने बना दिया कि ये जो है हमारा 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और B पे जो है वो कितना है, 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान से समझिएगा एकदम, 4 मीटर, फिर लास्ट में मैं पूछूंगा तो उसी वक्त बताइएगा जो डाउट होगा। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इनफ्लो जो है वो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 8, और जो इनफ्लो जो B पे है वो कितना है, 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है,
तो उसके बाद जो सी पे जो है वो क्या है, द आउटफ्लो है, मतलब कि सी से जो है हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है वो एग्जिट हो रहा है, कितने से, 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड से। अब दिया हुआ है गिवन आर ए बी, जो आर जो कांस्टेंट जो हमने दिया है एफ एल डिवाइडेड बाई जो है आपका 12.1 d5, उसकी वैल्यू जो है ए बी जो पाइप में है वो कितनी है, 10 है, ये वैल्यू जो है वो 10 है। बीसी में है वो कितनी है, 50, और इसमें कितना है आपका, एसी में जो है वो 20 है। अब ये सब कभी कभी क्या है, ये कांस्टेंट जो होता है क्वेश्चन में जैसे होता है के टर्म में भी रहता है, जैसे हमने बोला कि एच एफ इज इक्वल टू, हमने लिखा एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू d5, तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को हमने क्या बोला कि ये वैल्यू जो है वही आर है हमारा, ये तो आर को हम लोग कभी कभी के टर्म में भी लिखते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी आप वो के भी रहेगा तो वही चीज है, वो कांस्टेंट ही है एक, ठीक है। तो वो के, जैसे इस क्वेश्चन में के दिया हुआ था लेकिन हमने आर बताया है इसलिए हमने इसको आर में कर दिया है। आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे के ए बी, के बी सी और के ए सी दिया हुआ है, मतलब कि वही चीज है जो आर की वैल्यू है। अब इसको मैंने क्या बोला, पहला प्रोसीजर ये, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसने इतना हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखा है लिख भी दिया है कि यूज एच एफ इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, एच एफ जो है वो क्या है, आर क्यू स्क्वायर, मतलब कि आर एक कांस्टेंट है। अब हमने क्या लिखा है कि हमने पहला ट्रायल स्टार्ट किया, फर्स्ट ट्रायल में हमने क्या एज्यूम कर लिया है, फर्स्ट ट्रायल, यहाँ पे हमने लिख दिया कि फर्स्ट ट्रायल में हमने क्या किया कि ये 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसमें जो है वो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड जा रहा है और इसमें जो है वो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां से 2 जा रहा है, यहां से 3 गया और यहां भी इनफ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में इस पाइप में कितना जाएगा, तो 3 + 4 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वेदर इट इज करेक्ट और नॉट ये मैं नहीं जानता हूं, अभी हमने एज्यूम कर लिया है, पहला गेस ये हमारा है कि ये जो 5 मीटर क्यूब को हमने ए बी में हमने मान लिया है कि 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड और बीसी एसी में हमने मान लिया है कि 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो बीसी में जो होगा वो 4 मीटर का इनफ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो बीसी वाले पाइप में जाएगा और वहां से एग्जिट कर रहा है, तो ये 7 और +2 9। अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा वैलिड है। यहाँ से देखो 5 जो है वो 3 + 2 5, यहाँ पे आप देखो 4 है तो यहाँ से 3 जा रहा है, सॉरी इसमें 7 है तो ये 3 + 4 7 और यहाँ पे 9 निकल रहा है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 7, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट ट्रायल के लिए हम लोग क्या निकाल लें, इनिशियल डिस्चार्ज जो है हमने ले लिया है, इनिशियल गेस जो है क्यूएबी में जो लिया है हमने वो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इनिशियल डिस्चार्ज जो है वो एसी में जो है वो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड और डीसी में जो है वो 7 मीटर क्यूब पर। अब डायरेक्शन की बात करें तो कौन कौन सा क्लॉकवाइज हमारा जो हेड लॉस जो होगा ड्यू टू द फ्लो वो कौन सा क्लॉकवाइज होगा, तो इस पाइप एबी में देखिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीसी जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जो एसी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस चीज का ध्यान में रहे। तो अगर हम लोग अलग अलग हम लोग एक ये बना लेते हैं कि आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो पाइप और पाइप की जो है अलग अलग आर की वैल्यू दी हुई है और क्यू हमने इनिशियल गेस ले लिया है। उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, तो डेल्टा क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, आर क्यू स्क्वायर, और इसी का समेशन हम लोग निकाल देंगे। और जो हमारा चाहिए ये फिर जो हमें चाहिए समेशन ऑफ 2r3। उसके बाद हम लोग इसको करेक्ट कर देंगे, करेक्ट डिस्चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू जो इनिशियल है प्लस डेल्टा क्यू, यही तो हमारा डेल्टा क्यू है 2r3, सॉरी डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो वो देखते हैं पहले। तो पाइप हमारा जो है वो ए बी, जो पाइप जो है हमारा वो कौन कौन सा है, ए बी, फिर आपका बी सी, यहाँ पे देखो पाइप ए बी, बी सी और सी ए, तो ए बी, बी सी और सी ए। अब इस पे आर की वैल्यू जो अलग अलग है वो कितनी है, 10 50 और 20, तो 10 10 50 एंड 20। उसी तरह डिस्चार्ज जो हमने लिया है, डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो 3 7 और 2, 3 7 और 2, ये सारा चीज तो हमने एज्यूम किया है और कुछ वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपका। अब आप R इंटू क्यू स्क्वायर निकाल लीजिए अलग अलग पाइप के लिए। तो यहां से R इंटू क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, R इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सो 90। इसके लिए कितनी हो गई, तो इसके लिए आप डायरेक्शन भी ध्यान में रहे कि ये क्यू का डायरेक्शन ए बी में क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ठीक है पॉजिटिव हमने ले लिया। ये कितनी हो गई, तो 50 R इंटू क्यू स्क्वायर मतलब 49 इंटू 50, 49 इंटू 50, तो दैट इज इक्वल टू 2450, 2450। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये क्यू आप देखोगे एसी में, तो एसी क्या है, ये
आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये वाला निगेटिव वैल्यू होगा, तो ये निगेटिव वैल्यू हमने लिख लिया है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया ये क्यू स्क्वायर, तो 4 इंटू 20 -80। अब इसका आप निकाल दो समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर, समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90 प्लस 2450 -80, तो ये वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2460। अब हमें समेशन मॉड में जो निकालना है वो 2 इंटू आर इंटू क्यू, तो 2 इंटू आर इंटू क्यू मतलब कि 2 इंटू 10, 20 इंटू 3 60, ये वाली वैल्यू जो हो गया 100 इंटू 7 700, और ये वाली जो वैल्यू हो गई 80। 2 इंटू आर मतलब कि 40 इंटू 2 80, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया, ये मॉड में हमने लिया है, या जो आप एक्सप्रेशन में देखोगे तो यहाँ पे हमने मॉड लगाया है इसमें, तो यहाँ पे मॉड में जो होगा वो दैट इज इक्वल टू, तो 60 प्लस 700 प्लस 80, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 840, दिस वैल्यू इज 840। अब आप सबसे पहले डेल्टा क्यू निकाल लो, तो डेल्टा क्यू क्या था हमारा, माइनस समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका समेशन ऑफ मॉड 2 आर क्यू, तो यहां से कितना आ गया, समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर जो हो गया -2460 डिवाइडेड बाई 840, ये वैल्यू कितनी आ गई 246 डिवाइडेड बाई 884, तो ये वैल्यू जो आ गया हमारा कितना, माइनस 2.928 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये वैल्यू जो डेल्टा क्यू आई है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसमें हमने क्या बोला कि अलजेब्रिकली जो आपने इनिशियल एज्यूम किया है उसमें आप ऐड कर दो, उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो डायरेक्शन का ध्यान रहे, बस इस चीज का ध्यान रहे। तो क्यू जो हमारा किस डायरेक्शन में था, एबी में जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में आप अलजेब्रिकली जोड़ो जो भी वैल्यू है, तो 3 प्लस दिस वैल्यू, तो 3 प्लस माइनस इतना हो गया, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 2.928, तो ये वैल्यू जो आ गई वो 0.072 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू बीसी में, तो बीसी में भी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है 7 माइनस 2.928, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4.072, और ये वाला वैल्यू तो है ऑलरेडी निगेटिव है, हमने बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये -2 और -2.928, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2.928, तो यहां से कितना आ गया, दिस वैल्यू इज 4.928, और हमें डायरेक्शन हमने तो निगेटिव लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन से यहाँ पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये वैल्यू जो -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और एडिशनली जो एल्जेब्रिकली हमने जोड़ा है -2, तो ये कितना आ गया 4.928। अब जो आपका जो है फर्स्ट ट्रायल के बाद जो करेक्टेड डिस्चार्ज आया है एबी में अब कितना आ गया, ये जो हमने 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड लिया था, ये एक्चुअली में अब जो जाके हो गया, ये धीरे धीरे हम करेक्ट हो रहा है हमारा वैल्यू, तो ये कितना आ गया है 0.072, अभी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि जो डायरेक्शन हमने लिया है वो सही है। बीसी में जो हमारा वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया है, दैट इज इक्वल टू 4.072 इंस्टेड ऑफ 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और सीए में जो हमने लिया है, सीए में जो डायरेक्शन लिया है वो भी डायरेक्शन सही है, लेकिन अभी जो है इंस्टेड ऑफ 2 इट इज कमिंग 4.928। अभी हम तो यहाँ पे हमें रोक नहीं देना है, मैंने बोला है कि ये ट्रायल जो है, ये प्रोसीजर जब तक रिपीट करना है जब तक कि आपकी डेल्टा क्यू की वैल्यू नेग्लिजिबल ना हो जाए, डेल्टा क्यू की वैल्यू नेग्लिजिबल। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रायल हो गया। आफ्टर फर्स्ट ट्रायल हमारा कैसा बना अब पाइप नेटवर्क, तो पाइप नेटवर्क हमारा जो आफ्टर फर्स्ट ट्रायल, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इनफ्लो, ये कितनी 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहां से जा रही थी 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका जो एग्जिट हो रहा था वो कितना 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अभी भी इसके डायरेक्शन में देखो, ये वाला जो वैल्यू है वो 0.072, ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, ये जो है 4.072, सो ये वाली जो वैल्यू है वो 4.072, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आई है, दैट इज इक्वल टू 4.928, सो 4.928। अभी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब देखो 5 जो है वो 4.928 प्लस 0.072, 5 ये 0.072 प्लस 4, ये 4.072 4.072 प्लस 4.928 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आपका फर्स्ट ट्रायल हुआ। लेकिन यहीं पे रोक नहीं देना है, बिकॉज हमारा डेल्टा क्यू की वैल्यू नेग्लिजिबल होना चाहिए, तो दूसरा सेकंड ट्रायल अब हमने स्टार्ट किया। सेकंड ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल में किसी को डाउट है, फर्स्ट ट्रायल में किसी को डाउट? सर हाँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे बिल्कुल आसानी से समझाया जा रहा है। तो दूसरा ट्रायल हमने स्टार्ट किया, फिर से वही प्रोसीजर, आर की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो फिर से हमने लिखा पाइप, उसके बाद वैल्यू ऑफ आर
वैल्यू ऑफ आर के बाद हमने वैल्यू ऑफ क्यू लिख दिया है, जो अब दूसरा वैल्यू जो हमारा आया है, तो पाइप हमारा जो है ये हमारा ए बी और ये सी है, तो यहाँ पे क्या आ गया ए बी डी सी और सी ए। आर की वैल्यू तो सेम रहेगी, कितना कितना, तो वो है हमारा 10 50 20, सो 10 50 20। हाँ, क्यू की वैल्यू जो है वो 0.072 और ये वैल्यू जो है वो 4.072 और दिस वैल्यू इज 4.928। डायरेक्शन का ध्यान रहे कि जो ए बी में है अभी भी जो हमारा फ्लो जो हेड लॉस होगा ड्यू टू दिस फ्लो इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एसी में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। फिर से हमने क्या वैल्यू निकाला, आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर। अब आर क्यू स्क्वायर फिर से निकालिए, सो 10 into 0.072 स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज कमिंग 0.05184, 0.05184। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 into 4.072 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आ गई वो 829.059 और ये वाली वैल्यू जो है वो एंटी क्लॉक है तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 20 into क्यू स्क्वायर 4.928 स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आ गई -485.704। अब यहां से हमने निकाल दिया मॉड ऑफ जो है 2RQ। सबसे पहले इसके वैल्यू को निकाल लो, ये सम कितना होगा, तो सम जो हो जाएगा वो देख लीजिए पहले कितना आ गया, तो 0.05184 प्लस 829.072 माइनस 485.704, so this value is coming 343.407। सब लोग चेक करिए, यही आ रहा है, देख लो एक बार आर क्यू स्क्वायर। हाँ, अब हम लोग 2RQ निकाल लें, तो 2RQ का मॉड वैल्यू जो होगा वो 2 into 10 into 0.072, so 20 into 0.072, ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी 1.44। ये वैल्यू जो आ गई 100 into 4.072, so ये वैल्यू जो आ गई वो 407.2। और ये वैल्यू आती निगेटिव, लेकिन मैं मॉड ले रहा हूं, तो मॉड के कारण क्या हो गया कि वो भी वैल्यू पॉजिटिव, तो 2 into R, so 40 into 4.928, 40 into 4.928, so this value is coming 197.12। अब इसका भी मॉड निकाल लें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, करेक्ट डिस्चार्ज हो वो क्या हो जाएगा Q प्लस डेल्टा Q। सबसे पहले हम लोग डेल्टा Q निकाल लेते हैं कितना है, तो यहाँ से सबसे पहले तो मॉड इसका समेशन निकाल लीजिए, तो समेशन ऑफ 2 into RQ क्या हो जाएगा, so that is equal to 1.44 plus 407.2 plus 197.12, तो ये वैल्यू जो आ गई वो 605.76। तो यहाँ से डेल्टा क्यू निकाल लीजिए, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 2RQ। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू आ गई आर क्यू स्क्वायर कितना है 343.407 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू इज 605.76, तो 605.76। तो ये जो वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू की 343.407 डिवाइडेड बाई 605.76, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई वो -0.566 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी भी वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है। अब आप सबसे पहले तो डेल्टा क्यू अब क्यूसी करेक्टेड वैल्यू निकाल दो, तो करेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, अलजेब्रिकली जोड़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन के साथ। तो ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव लिया है हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 0.072, तो 0.072 माइनस हमारी कितनी वैल्यू आई है डेल्टा क्यू की, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो आ गई है -0.566, तो ये वैल्यू जो आ गया है वो -4.94। अब माइनस डिनोट कर रहा है, माइनस जो है वो डिनोट कर रहा है कि हमारा जो वैल्यू है जो हमने डायरेक्शन लिया अब चेंज हो गया है। तो ये वाला वैल्यू जो आया है वो कितना -0.494
494, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब ये जो क्लॉकवाइज जो रोटेट कर रहा था हेड लॉस को, अब वो एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो ये -4.94। उसी तरह ये वाली वैल्यू जो है वो 4.072 माइनस 0 पॉइंट कितना है डेल्टा क्यू की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 566। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई वो 3.506। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई 3.506। और ये वाली वैल्यू जो एसी में है वो तो एंटी क्लॉक में है ही है, तो एंटी क्लॉक में कितनी वैल्यू है, -4.928। तो 4.928 और माइनस जो है वो कितनी 0.566। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई वो कितनी 5.494। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई 5.494। अब जो है ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि व्हाट वी हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ द हेड लॉस ड्यू टू द फ्लो दैट विल बी रिवर्स्ड। अब रिवर्स्ड हो गया है। तो फिर से अगर हम लोग यहाँ पे पाइप नेटवर्क अब बनाए फिर से आफ्टर द सेकंड ट्रायल, once we have completed the second trial, so the scenario will change for the pipe AB। अब क्या हो गया, सो यहाँ पे जो है हमारा वो 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे जो वैल्यू जो इनफ्लो हो रहा था 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमारा आउटफ्लो जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, सो दैट इज इक्वल टू 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो है डायरेक्शन कुछ इस तरह ले लेंगे हम लोग। अब वो वाली वैल्यू कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 0.494। और ये वाली तो जो वैल्यू हम डायरेक्शन लिया है वही है हमारा वो, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो बी में कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3.506। और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 5.494। 5.494। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये चेंज थोड़ा सा आ रहा होगा, ये जो 5 है वो नहीं आ रहा हो, ये वाली जो वैल्यू है, तो यहाँ से आप देखो कि ये वाली वैल्यू 5.494 और यहाँ से जो 5 आ रहा था ये पूरा पूरा इधर जा रहा है, ये 4 जो है, तो यहाँ से आपका जो आया था 4 से ये कुछ वैल्यू आया 4.94, तो यहाँ पे वैल्यू कितना बच गया 3.506 और यहाँ पे 5.49। फिर से हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन वेरीफाई है या नहीं है, बोलिए। यस, कंटिन्यूटी इक्वेशन एप्लीकेबल है, बट डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है अभी नेग्लिजिबल नहीं हुआ है। सो हम लोग थर्ड ट्रायल के लिए जाएंगे। थर्ड ट्रायल में म्यूट कर लीजिए जो अनम्यूट किए हुए हैं, जब पूछा जाएगा तो अनम्यूट करिएगा प्लीज, म्यूट कर लीजिए, इको हो रहा है। तो पाइप है और यहाँ से फिर से हमारी वैल्यू जो है आर, और आपकी जो वैल्यू है फिर क्यू जो है हमारा आया है आफ्टर दी सेकेंड ट्रायल के बाद जो वैल्यू जो आ गई है, तो पाइप हमारा है ए बी, बी सी और ए सी, और आर की वैल्यू जो है वो कितना कितना है, सो हमारा है 10 50 20। सो 10 50 और 20। और क्यू की वैल्यू जो है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 0.494 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका जो है बीसी में है वो कितना है 3.506 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 3.506, और एसी में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 5.494। फिर से हमने वैल्यू निकाला आर क्यू स्क्वायर, और फिर जो हमारा दूसरा वैल्यू जो है वो कितना 2RQ का मॉड, और फिर से हमारा करेक्टेड वैल्यू देखते हैं क्या आता है। करेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, एल्जेब्रिकली जोड़ा जा रहा है यहाँ पे डेल्टा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब देख लेते हैं RQ स्क्वायर क्या है, दिमाग में रहे। अब ये बात बिल्कुल एकदम, आपको जब क्वेश्चन हार्डी क्रॉस का सॉल्व करते रहोगे तो एक ही चीज सोचना है कि मैं हार्डी क्रॉस सॉल्व कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रहे। अब देखो AB का सिनेरियो चेंज हो गया है, ये किस तरह रोटेट करेगा, ये किस तरह रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक में RQ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 0.494 का स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज -2.44 जो आ रहा है, माइनस दिस वैल्यू इज कमिंग -2.44। और जो BC में है, तो BC में कितना हो जाएगा, वो तो क्लॉकवाइज ही है, तो 50 इंटू 3.506 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 614.60। और यहाँ से उसी तरह इसका RQ स्क्वायर कितना हो गया था 20 इंटू 5.494 का स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज कमिंग -603, दिस वैल्यू इज कमिंग -603.68। उसी तरह 2 इंटू RQ निकाल लें, तो 2 इंटू R 20 इंटू, अब यहाँ पे 2RQ जब निकालते रहेंगे तो दिमाग जो है आपका इधर उधर जाए भी तब भी नहीं, क्योंकि ये मॉड है।
मॉड में जो है या तो निगेटिव ले या पॉजिटिव, वो वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव ही निकले। तो 20 इंटू आपका 2 इंटू आर इंटू क्यू 0.494, so this value is coming 9.88 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 9.88 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसी तरह दिस वैल्यू इज 2 इंटू आर, सो 100 इंटू 3.506, 3.506, so ये वैल्यू जो आ गई वो 350.6। और इसी तरह ये 2RQ जो हो गया वो 40 इंटू क्यू की वैल्यू जो है वो 5.494, so this is equal to 219.76, 219.76। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग समेशन ऑफ RQ स्क्वायर और मॉड ऑफ समेशन ऑफ 2RQ निकाल लें। तो यहाँ से समेशन ऑफ RQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल टू 614.60 माइनस 603.68 माइनस 2.44, तो ये वाली वैल्यू जो आ गई वो 8.48, दिस वैल्यू इज कमिंग 8.48। और उसी तरह समेशन ऑफ 2RQ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सो 9.88 प्लस 350.6 प्लस 219.76, so this value is coming 580.24, 580.24। so यहाँ से फिर से हम लोग डेल्टा क्यू निकाले, अगर डेल्टा की क्या आ जाएगा, माइनस समेशन ऑफ RQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2RQ समेशन। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस 8.48 डिवाइडेड बाई 580.24, तो ये वाली वैल्यू जो आ गई 8.48 डिवाइडेड बाई 580.24, so that is equal to 0.0 माइनस 0.014। तो ये बहुत कम वैल्यू है, तो यहाँ पे हम ट्रायल रोक सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू जो आई है बहुत कम आई है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रायल को अब हम लोग रोक सकते हैं। तो इस ट्रायल को अगर हम लोग रोके, उसके बाद आप डिस्चार्ज निकालो, एक्चुअल करेक्टेड डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी, करेक्टेड डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू आई है दैट इज 8.48, थोड़ा सा ये बंद हो गया था, ये वाला वैल्यू जो आया था वो कितना था, दैट इज इक्वल टू 580.24। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हमने निकाला था माइनस समेशन ऑफ RQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2RQ, तो ये वाली वैल्यू जो आई है वो माइनस 0.014। तो ये वैल्यू जो है वो बहुत कम है। अब यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू कर दीजिए इसको, तो करेक्टेड वैल्यू जो हो जाएगा वो 0.49, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस 0.494 माइनस 0.014, तो 0.494 प्लस 0.014, तो ये वाली वैल्यू जो आ गई, लगभग ये वैल्यू हमने ले लिया है कि माइनस जो है, तो ये वाली वैल्यू आ गई वो 0.5, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितना, तो 3.506 प्लस 0.01, तो ये वाली वैल्यू को हमने ले लिया है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो 3.516 है, तो हटा दिया है हमने। और ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, तो वो 5.49 माइनस 5.494, तो 5.494 और प्लस माइनस यानी 0.01, तो ये वाली वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई, 5.5। तो ये वाली की वैल्यू को हमने 5.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अगर हम लोग बनाए यहाँ पे, अगर हम लोग फिर से अगर आफ्टर थर्ड ट्रायल जो है हम लोग यहाँ पे फिर से बनाए, तो क्या हो जाएगा हमारा पाइप नेटवर्क, डेल्टा क्यू की वैल्यू नेग्लिजिबल है। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज डेल्टा क्यू जो है ये बोलता ही हार्डी क्रॉस की आपको ट्रायल तब तक अप्लाई करना है जब तक कि डेल्टा क्यू की वैल्यू नेग्लिजिबल ना आए। और वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन विल सेटिस्फाइड ईच एंड एवरी ट्रायल। आपको यहाँ पे कितना था, 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे जो आपका था वो कितना था, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आउटलेट पे जो था आपका आउट जो हो रहा था वो एग्जिट जो हो रही है वो 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो देखो डायरेक्शन जो हमने लिया था इनिशियली वो क्लॉकवाइज में लिया था, लेकिन जो नाउ द सिनेरियो हैज चेंज, सिनेरियो चेंज हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमने लिया 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू को हमने लिया 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये जो सॉरी यहाँ पे कितना है, ये जो है वो 5.5 है, दिस वैल्यू इज 5.5, ये जो है हमारा 5.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये जो वैल्यू है वो 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये वैल्यू जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जहां पे आप रोक रहे हो, ये दिस इज द फाइनल आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज जो था
पाइप में कुछ इस तरह हो रहा है। जो आपका ए बी है, पाइप ए बी, दिस इज ए बी सी, तो आपका जो क्यू ए बी की वैल्यू जो आ गई, क्यू ए बी दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डायरेक्शन भी मैं बता रहा हूँ, क्यू ए सी दैट इज इक्वल टू 5.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्यू जो है आपका बी सी है दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्लॉकवाइज। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नो सर। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डी क्रॉस मेथड। ये आपको अप्लाई करना होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो आपको ये कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाएगा कि डेल्टा क्यू की वैल्यू को निकलवा लेगा वो एक स्टेप में, डेल्टा क्यू की वैल्यू को निकाल देगा, या बोलेगा कि क्या क्या इसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो सारा चीज जो हमने लिखा था उसको हम लोग बता दें। इसमें एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज वो ब्लॉग्स पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप ब्लॉग्स पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन जो वो है जो AKU नहीं पूछा हुआ है, और वो जो पाइप का नेटवर्क है वो आपका 3 पाइप नहीं देके वहां पे आपका 5 पाइप्स है, तो 5 पाइप्स है, तो सेम प्रोसीजर आपका सेम है, इसी तरह आपको करना है। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन रहेगा होपफुली आपसे बन जाएगा। उसी तरह ब्रांचिंग ऑफ पाइप जो होता है, तो ब्रांचिंग ऑफ पाइप में क्या करते हैं कि टू सॉल्व ब्रांचिंग ऑफ पाइप हमारे पास 3 इक्वेशन जो है दैट शुड बी सेटिस्फाइड। पहला जो है आपका कि कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, बर्नौली इक्वेशन वी कैन यूज एज ए एनर्जी इक्वेशन, एंड डार्सी-वेशबैक इक्वेशन ये हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ब्रांचिंग ऑफ पाइप मतलब कि डिफरेंट रिजर्वायर से पाइप आया हुआ है, डिफरेंट रिजर्वायर से हमने क्या किया, पाइप को लाया है, और वो कहीं एक जगह जाके वहां पे कहीं पे मिल रहा होगा, जिसको बोला जाएगा जंक्शन पॉइंट। जिसको क्या बोला जाएगा, जंक्शन पॉइंट। जैसे मैंने बोला कि एक पाइप इधर से आया हुआ है, दूसरा पाइप जो है वो इधर से आया हुआ है, और ये तीसरा पाइप जो है वो इस रिजर्वायर से। लेट अस अज्यूम कि ये पहला रिजर्वायर से कनेक्ट है, दूसरा रिजर्वायर से कुछ इस तरह कनेक्ट है, और तीसरे रिजर्वायर से यहाँ कनेक्ट है तीसरा। तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाएगा जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट। तो इसमें अब ये दिखाया गया है ये डायग्राम में। अब यहाँ पे देखने के बाद डायग्राम में तो लग रहा है कि यहाँ से जो फ्लो आएगा, ये फ्लो जो आएगा और यहाँ से भी फ्लो आएगा, दैट इज इक्वल टू Q3। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ का जो जंक्शन का जो हेड है वो इस पॉइंट 2 जो पहला रिजर्वायर है, ये तीसरा है, हो सकता है कि ये जंक्शन का जो हेड है वो पॉइंट 2 से ज्यादा हो। तो जैसे जंक्शन हेड जो पॉइंट 2 जो आपका इससे अगर डेटम हेड से ज्यादा हो जाएगा तब तो फ्लो रिवर्स हो गया ना, यहाँ से आया और इधर हमारा फ्लो होने लगा। और कुछ फ्लो जो है अगर मान लो कि तीसरा जो पॉइंट है वो जंक्शन से नीचे है, मतलब कि इधर भी फ्लो जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह। तो वो देख के हम लोग नहीं बता सकते, जब तक कि इस ब्रांचिंग ऑफ पाइप को एनालाइज नहीं किया जाए, देन वी कांट से एनीथिंग। डायग्राम से देख के आप मत बता देना कि हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, बोलेगा कि Qn इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 ऐसा, तो या बोल जाएगा Qt इज इक्वल टू जो है वो Q1 प्लस Q3। तो वो आपको सबसे पहले हेड से डिसाइड करना होगा कि किसका हेड ज्यादा है और किसका हेड कम है। तो उसी तरह का तो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला सिंपल केस है वो क्या है कि आपका हर पाइप का जो है वो फ्रिक्शन, डार्सी-वेशबैक फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ और डायमीटर दिया है। जैसे यहाँ पे 3 पाइप है, अगर 3 पाइप है तो तीनों का आपका F मतलब डार्सी-वेशबैक फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ और डायमीटर दी हुई है। मान लो कि जो पहला जो टॉप जो हमारा रिजर्वायर है उससे जो डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो दिया हुआ है, और इसका जो है वो डेटम हेड और दूसरे का डेटम हेड दिया हुआ है, तो हमें तीसरा का डेटम हेड निकालना होगा और ये दोनों पाइप में डिस्चार्ज निकालना होगा। ये सबसे सिंपल केस है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। तो हमने लिया है कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इफ फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ऑल पाइप्स आर गिवन। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फैक्टर जो तीनों पाइप का है वो दिया हुआ है, ZA, ZB एंड QA आर गिवन। मान लो कि ये ZA दिया हुआ है, ZB दिया हुआ है, और जो डिस्चार्ज जो इसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो हमारा दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो इसका डेटम हेड कितना होगा, थर्ड पॉइंट का रिजर्वायर का हेड। उसी तरह वी हैव टू फाइंड द डिस्चार्ज इन B और C में क्या होगा, और डायरेक्शन भी बताना होता है कि क्या होता है। तो इसको हम लोग फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक एग्जांपल लिया है कि 3 रिजर्वायर्स आर इंटरकनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। जंक्शन पॉइंट, इस पॉइंट को हमने जंक्शन बोला है, और इस पाइप का जो है वो डार्सी-वेशबैक फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो F1 है, L1 है, जो लेंथ है वो L1 है, और डायमीटर जो है वो D1 है, एंड दिस पाइप इज कनेक्टेड विद द रिजर्वायर 1। उसी तरह ये पाइप को हमने सेकंड पाइप माना है, और ये रिजर्वायर 2 से कनेक्टेड है, और ये थर्ड पाइप है जिसका रिजर्वायर से कनेक्ट किया गया है। और ये तीनों पाइप जहां पे एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पाइप को बोला जाएगा जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट का हेड भी हमें निकालना जरूरी होता है, ताकि ये पता चले कि ये जो वाकई में अभी तो देखने में तो लग रहा है कि रिजर्वायर 2 जो है वो जंक्शन पॉइंट से भी ऊपर है, लेकिन एक्चुअली में जो डाटा हमारे पास दिए हुआ है उससे ये पता चलेगा कि ये ऊपर है या नीचे है। सो दैट वी हैव टू चेक, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट चेक
जैसे हमने चेक कर लिया कि जो हेड जो है वो आपका जो है 2 का, अगर जंक्शन से ज्यादा होगा तो फ्लो जो होगा हमारा 2 टू जंक्शन के टूवर्ड्स होगा। अगर हमारा जंक्शन का हेड ही अगर 2 से ज्यादा है मतलब कि फ्लो जो हो जाएगा जंक्शन से 2 की तरफ होगा। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, डायमीटर जो है वो तीनों पाइप का दिया हुआ है, D1 D2 D3 इज 1000 mm, 500 mm and 600 mm. Similarly, the length is given and friction, Darcy-Weisbach friction factor is given. So we have to find, क्या हमको फाइंड करना है, डेटम हेड जो Z1 की दी हुई है 135 मीटर, Z1 जो है वो 135 मीटर पे है, Z2 जो है वो 120 मीटर पे है, इसकी डेटम हेड जो है वो 120 मीटर पे है। और जो हमको फाइंड करना है डिस्चार्ज जो आ रहा है वो पहले इस पाइप के थ्रू जो आ रहा है वो दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। देन व्हाट इज द डिस्चार्ज इन पाइप 2 एंड पाइप 3 एंड व्हाट इज द डेटम हेड इन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो है कि हम लोग क्या निकाल लें, हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, ये कि व्हाट इज द हेड ऑफ, जो हेड है हमारा जंक्शन पॉइंट पे कितना है। तो जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा, जो इसके फ्लो डिस्चार्ज हो रहा है, आपको इसके फ्लो जो हेड लॉस हो रहा है और इसका हेड जो है डेटम हेड और माइनस जो फ्रिक्शन लॉस के कारण जो हेड लॉस होगा उसको अगर माइनस कर दे तो क्या एचजे पता चल जाएगा। तो एचजे को क्या मैंने मान लिया कि लेट, यहाँ पे हम लोग लिखे अगर सॉल्यूशन तो एचजे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचजे इज इक्वल टू जो हमारा जो टोटल हेड है, ये जो डेटम हेड है क्या यहाँ पे 1 पे वो कितना है 135 मीटर। सो 1 या इसको इस तरह लिख दिया कि Z1 माइनस HF जो है हमारा 1 में कितना हो रहा है। तो यहाँ से HJ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कितना, Z1 कितना है, तो Z1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 135। सो 135 माइनस F1 इंटू L1 इंटू Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू D15। तो यहाँ से HJ जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू 135 माइनस, आप देख लो फ्रिक्शन फैक्टर 1 का कितना है, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो 0.015 सो 0.015 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द पाइप इज L1 इज 3000 मीटर, सो 3000 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डायमीटर ऑफ द पाइप 1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 1000 mm, मतलब कि कितना हो गया 1 मीटर। सो इट विल बी 1 to the power 5। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई 135 माइनस 0.015, ये वाली जो वैल्यू है 0.015 इंटू 3000 इंटू 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई वो 8.368 है, 8.368। तो ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 135 माइनस 8.368। तो जो डेटम आपका जो हेड है वो जंक्शन पॉइंट पे वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 126.632 मीटर। अब ये देखो कि ये जो डेटम का जो हेड आया है वो किससे, आपका बी से ज्यादा है या कम है। बी पे जो हेड है वो कितना है आपका डेटम हेड, Z2 की वैल्यू कितनी है 120 मीटर। सो इट इज ग्रेटर देन 120 मीटर, 120 मीटर से ज्यादा है, मतलब कि आपका फ्लो का जो होगा, जो दिख रहा था कि कुछ इस तरह होगा वो नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज द जो हेड एट द जंक्शन पॉइंट इज ग्रेटर देन द डेटम हेड एट पॉइंट 2, सो फ्लो इज टुवर्ड्स 2। तो फ्लो जो होगा किस तरह होगा, कुछ इस तरह आया, यहाँ से कुछ आ रहा है और यहाँ से फिर इधर जा रहा है और कुछ इधर भी जाएगा। तो यहाँ पे जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो यहाँ हम लोग Q2 निकाल सकते हैं। Q2 कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो जा रहा है फ्लो वो क्या है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 हो गया और दिस इज Q3, ये जो है वो Q3 है। Q2 कैसे निकालेंगे, तो अब जो हमारा क्या है HJ माइनस Z2, या HJ में से अगर हम लोग फ्रिक्शन लॉस को माइनस कर देंगे तो वही तो वैल्यू हमारा Z2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, HJ माइनस HF2 दैट इज इक्वल टू Z2। HJ कितना है हमारा, HJ इज इक्वल टू, तो HJ माइनस Z2 कर दो, HJ माइनस Z2 दैट इज इक्वल टू HF2। HJ की वैल्यू जो है वो कितनी है, HJ हमने निकाला है 126.632, तो 126.632 माइनस डेटम हेड Z की 2 की कितनी है, तो डेटम हेड जो है वो 120 मीटर, तो 120 दैट इज इक्वल टू HF2 को क्या लिख सकते हैं, F2 L2 इंटू Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू D2 टू द पावर 5। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, D2 टू द 5। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6.632 दैट इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी है, F2 जो है आपकी दैट इज इक्वल टू 0.024, सो 0.024
इंटू एल, सारा वैल्यू रखो और Q2 निकाल लीजिए कितना आ रहा है, देखो। यहां से अगर रखा जाए F2 की वैल्यू, तो F2 जो है वो कितना है, F2 इज इक्वल टू, तो F2 की वैल्यू जो है वो 0.024, सो 0.024 इंटू लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो 2 में कितनी है, सो लेंथ जो है वो दैट इज इक्वल टू 600 मीटर, तो 600 इंटू Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितनी है, डायमीटर इज 500 mm, मतलब कि 0.5 मीटर, तो 0.5 टू दी पावर 5। सो यहाँ से Q2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 6.632 इंटू 12.1 इंटू 0.5 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 0.024 इंटू 600। तो Q2 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.417 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, जो इससे आ रहा है कुछ इसमें गया तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो थर्ड रिजर्वायर की तरफ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो यहाँ से हम लोग Q3 निकाल सकते हैं। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 कितनी है 1.5 माइनस 0.417, 0.417। तो यहाँ से वैल्यू जो आ गई 1.5 माइनस 0.417, so this value is 1.083 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो डिस्चार्ज होगा वो हमारा Q3 थर्ड पाइप में हो गया। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, दैट इज Z3। Z3 क्या हो जाएगा, तो Z3 यहाँ पे देखो, Z3 जो हो जाएगा वो क्या, HJ माइनस HF3 दैट इज इक्वल टू Z3। आपका जो है HJ माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा HJ, now we can write HJ minus HF3 that is equal to Z3। तो Z3 क्या हो जाएगा HJ, HJ की वैल्यू कितनी है, HJ is equal to 126.632, so 126.632 minus F3L3, so HF3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, F3 की वैल्यू जो है वो 0.02, तो 0.02 इंटू L की वैल्यू जो है वो कितनी है, लेंथ जो है वो 1200 मीटर, सो 1200 इंटू D3, सो D3 जो है वो 600 mm, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q3 स्क्वायर। सो Q3 की वैल्यू कितनी है 1.083 स्क्वायर FLQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितनी है, तो डायमीटर जो है वो 600 mm है, सो 600 मतलब कि 0.6 टू दी पावर 5। तो यहाँ से Z3 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 126.632 माइनस 0.02 इंटू 1200 इंटू 1.083 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू 0.6 टू द पावर 5। तो ये वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 96.71 मीटर। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई हमारी 96.71 मीटर। तो इस तरह हमने सारा चीज निकाल लिया है। तो बस आपको क्या है, आपको जंक्शन देखना है कि किस तरह है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। सो आपका जो आज जो है हमने ब्रांचिंग ऑफ पाइप और जो है हार्डी क्रॉस मेथड, ब्रांचिंग ऑफ पाइप नेटवर्क्स में हमने हार्डी क्रॉस मेथड को डिस्कस किया और फिर हमने ब्रांचिंग ऑफ पाइप को डिस्कस किया है।